Welcome back, dear students. This is Dhanavir Singh, Biology faculty of Chibra Singh Children's Academy. Students, we are discussing about chapter Molecular Basis of Inheritance, and in this chapter we are discussing about the first part, that is search of the genetic material. And in this topic we have discussed about the experiment of the different researchers that work on proving that which biomolecule is the genetic material. It is either DNA, RNA or protein. So first experimental proof was given by Frederick Griffith. He experimented on Streptococcus pneumoniae, that is a bacteria, and given that a particular transforming principle is the genetic material, but he is unable to prove that it is DNA, RNA or protein. After that, three scientists in 1934, Avery, MacLeod and McCarthy, experimented, or we can say that re-experimented on the transforming principle, and tells us about that the DNA is the genetic material, and he tells us about that, but don't have an experimental proof, or we can say that visual proof for the researchers or biologists that he convenienced them. But the researchers are not convenienced about their research and simply discarded it. After that, in 1952, Hershey and Chase experimentally proved that DNA is the genetic material. So in 1952, Hershey and Chase proved that, or given an unequivocal proof that DNA is the genetic material. He experimented on bacteriophages. What he did, he experimented on bacteriophages. What are the bacteriophages? Viruses. They are the viruses that infect bacteria. So bacteriophages are the viruses that infect bacteria, and they also have DNA as genetic material. So these viruses are the model organism for the Hershey and Chase for proving that DNA is the genetic material. Simply, the virus contain a protein code. What? They have only two things. That's why they are known as nucleoprotein particles. What are the viruses? Nucleoprotein particles. They contains a protein code. What? Protein code and a genetic material, and bacteriophages have DNA as genetic material. What Hershey and Chase simply did, बेटा क्या किया उन्होंने? They simply radioactivated this protein code with the help of a heavy isotope of sulfur. We know that proteins are made up of monomers of amino acid. These proteins are the polymers and they are made up of amino acids. बेटा किसके बने हुए होते हैं ये? अमाइनो एसिड्स के बने हुए होते हैं. An amino acid that is known as cysteine. What is cysteine? And cysteine is cysteine is an amino acid that contains sulfur is their end chain. बेटा क्या होता है? सिस्टीन एक ऐसा अमाइनो एसिड था जिसका जो साइड चेन होता है that contains sulfur. So simply these cysteines are responsible for making disulfide bonds in the case of the protein. So if they radioactivate this sulfur, they simply this protein code is radioactivated. बेटा क्या होगा? अगर हर्शे और चेज ने इस सल्फर को रेडियो एक्टिव कर दिया तो सिंपली ये प्रोटीन कोड जो होगा वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा, और जो अभी एक्सपेरिमेंट में यूज होगा. ओके, सो सिंपली दे रेडियो एक्टिवेट. क्या किया उन्होंने?
रेडियो एक्टिवेट द सल्फर विद सल्फर 35। बेटा क्या किया, सल्फर के हैवी आइसोटोप सल्फर 35 से इसको रेडियो एक्टिव बना दिया। नेक्स्ट दे हैव डीएनए एंड वी नो दैट डीएनए कंटेन्स, बेटा अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के दिखाते हैं आपको, देन सिंपली डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ओके, एंड मेड अप ऑफ मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बेटा डीएनए न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर का बना हुआ होता है, एंड दिस मोनोमर सिंपली कंटेन्स अ पेंटोज शुगर, दिस इज अ पेंटोज शुगर, दिस इज अ नाइट्रोजनस बेस, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन and 5th carbon, and from 5th carbon a phosphate group is added। बेटा क्या होता है, 5th कार्बन से एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। सो वी नो दैट दिस डीएनए और वी कैन से दैट मोनोमर ऑफ डीएनए दैट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स फॉस्फेट एट 5 प्राइम एंड। बेटा क्या होता है, डीएनए के 5 प्राइम एंड पे एक फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। ऐसी प्रोटीन में जो सिस्टीन अमाइनो एसिड होता है वहाँ पे सल्फर प्रेजेंट होता है। दीज टू वी कैन से दैट two peculiar characters are responsible for the, we can say that, experimental proof of the हर्शे एंड चेस। बेटा ये जो peculiar characters थे हर्शे एंड चेस ने इनके ऊपर वर्क किया और प्रूफ किया दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो पहले तो बेटा क्या किया उन्होंने, सिस्टीन अमाइनो एसिड के या प्रोटीन के एक मोनोमर के सल्फर को रेडियो एक्टिव कर दिया, जिससे प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव हो गया कुछ बैक्टीरियोफेजेस का। उसके बाद में क्या किया, सेकेंड सेटअप में उन्होंने क्या किया कि जो डीएनए था उसमें जो फॉस्फोरस प्रेजेंट था उस फॉस्फोरस को रेडियो एक्टिव कर दिया। कैसे किया अभी हम बताएंगे, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेट 32। बेटा फॉस्फेट 32 क्या है, हैवी आइसोटोप है और रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप है किसका, फॉस्फेट का, रेडियो एक्टिव फॉस्फेट है। ओके सो बेटा क्या किया हर्शे एंड चेस ने, डीएनए के अंदर फॉस्फोरेट को रेडियो एक्टिव किया और प्रोटीन कोड में सल्फर को रेडियो एक्टिव किया। बट एक ही बैक्टीरियोफेज में नहीं, कुछ बैक्टीरियोफेज में प्रोटीन कोड को रेडियो एक्टिव बना दिया और कुछ बैक्टीरियोफेज में डीएनए को रेडियो एक्टिव बना दिया। दैट्स वाई दे मेक 2 सेटअप्स। इसलिए बेटा इन्होंने क्या बनाए, 2 सेटअप बनाए। सो हियर वी पीपल गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल 2 सेटअप्स। बेटा हम भी यहाँ पे 2 सेटअप बनाएंगे। ओके सो फॉर दैट वी हैव टू टेक अ कंप्लीट बोर्ड। बेटा हमको कंप्लीट बोर्ड चाहिए होगा, आफ्टर दैट वी आर एबल टू प्रूफ इट। ओके so I am going to discuss about how Hershey and Chase experimentally proved that DNA is the genetic material. Okay so here is the setup first and this is the setup second. In setup first he take radioactive सल्फर और सल्फर 35 और सेटअप सेकंड के अंदर क्या लिया, फॉस्फोरस 32 और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। बेटा क्या किया उन्होंने, एक सेटअप के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया। सिंपली स्टेप फर्स्ट सिंपली ग्रीव द बैक्टीरियोफेजेस। बेटा क्या किया यहाँ पे, क्या किया, दे ग्रीव द बैक्टीरियोफेजेस इन सल्फर 35। बेटा क्या किया, बैक्टीरियोफेजेस को सल्फर 35 के साथ में ग्रो कराया। देन व्हाट हैपेंस, देयर प्रोटीन कोड बिकम रेडियो एक्टिव, जिससे क्या हो गया, उनका प्रोटीन कोड कैसा हो गया बेटा, रेडियो एक्टिव हो गया। दे कंटेन्स रेडियो एक्टिव
प्रोटीन कोट। इन बैक्टीरिया का बेटा प्रोटीन कोट कैसा हो गया, रेडियो एक्टिव, एंड दे कंटेन्स नॉर्मल डीएनए। इन सेकेंड सेटअप दे grew the bacteriophage with phosphorus 32, so that what happens बेटा उससे हुआ क्या, the genetic material that time was not known, their DNA become radioactive। उससे क्या हो गया, जो उनका डीएनए था बेटा वो कैसा हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। नेक्स्ट थिंग इज दैट इन नेक्स्ट स्टेप, बेटा अगले स्टेप में क्या क्या, स्टेप सेकेंड, दे सिंपली इन्फेक्ट द बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरियोफेजेस। बेटा स्टेप सेकेंड के अंदर उन्होंने क्या किया, इन बैक्टीरियोफेजेस की हेल्प से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवा दिया विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरियोफेजेस। सेम थिंग ही डिड हियर, यहाँ पे बेटा यही किया इन्होंने। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस बैक्टीरियोफेज कैम, बेटा क्या हुआ, यह बैक्टीरियोफेज आया और इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। They infect this bacteria, same thing happens here, बेटा बिल्कुल यहाँ पे भी वैसे ही होगा। After the infection, what they simply do, they simply inject their genetic material in the bacteria। बेटा इन्होंने क्या किया होगा, इन बैक्टीरियोफेजेस ने अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर दिया होगा। दे सिंपली इंजेक्ट देयर जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द बैक्टीरिया। दे सिंपली इंजेक्ट, व्हाट दे डिड, दे सिंपली इंजेक्ट देयर जेनेटिक मटेरियल डीएनए इनटू बैक्टीरिया। बेटा क्या किया, डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर दिया। सेम वे इट हैपेंस हियर, बेटा यहाँ पे भी यही हुआ होगा। अपना जो जेनेटिक मटेरियल होगा उन्होंने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया होगा। ओके, एंड दे आर नाउ स्टिल अटैच्ड। अभी भी बेटा क्या होगा, बैक्टीरिया से वो अटैच होंगे। ओके, सो प्लीज़ कंफर्म। बेटा क्या हुआ, बैक्टीरियोफेज के कोट को यहाँ पे उन्होंने रेडियो एक्टिव किया था, वहाँ पे डीएनए को रेडियो एक्टिव किया था, दोनों को बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट कराया। इन्फेक्ट कराने के बाद में दोनों बैक्टीरिया ने क्या किया, अपना डीएनए अंदर भेज दिया, खुद अंदर नहीं गए। हाउ इट इज प्रूफ, ये कैसे प्रूफ होगा, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। क्या हुआ बेटा, स्टेप सेकंड के अंदर, स्टेप थर्ड के अंदर क्या हुआ, इन बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए इंजेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द ब्लेंडर, बेटा एक ब्लेंडर की हेल्प से क्या करते हैं, इसको बहुत तेज से घुमाते हैं हर से इंचेस। उससे होता क्या है, बैक्टीरियोफेज अलग हो जाते हैं बैक्टीरिया से। नाउ व्हाट हैपेंस, दे एजिटेशन करते हैं। बेटा क्या करते हैं, एजिटेट द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को एजिटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर। बेटा किससे, एक मिक्सी या एक ब्लेंडर के हेल्प से इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं, जिससे होता क्या है, सिंपली व्हाट हैपेंस, दीज बैक्टीरियोफेज आर डिटैच्ड। बेटा क्या हो जाएगा, बैक्टीरियोफेज अलग हो जाएंगे। बैक्टीरियोफेज सिंपली डिटैच्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज बेटा बैक्टीरिया से डिटैच हो जाएंगे। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस होगा। दिस इज द प्लाज्मिड बैक्टीरियल डीएनए एंड वायरल डीएनए। उसके बाद में बेटा अब क्या होता है, नाउ अब आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस, सेंट्रीफ्यूज। क्या किया उन्होंने, सेंट्रीफ्यूज।
centrifuge and remove all the viruses और वायरस कोट। बेटा सेम यहाँ पे किया, यहाँ पे भी बेटा क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया और सेंट्रीफ्यूज करके सारे के सारे वायरस कोट को अलग कर लिया। वायरस कोट को अलग करने के बाद में जो सॉल्यूशन बचा उसके अंदर बेटा सिर्फ बैक्टीरिया होंगे। दे सिंपली सी दैट द सेटअप फर्स्ट बैक्टीरिया और द बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट इन सेटअप फर्स्ट दैट हैव नो रेडियो एक्टिविटी। बेटा इन बैक्टीरिया के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं थी एंड द बैक्टीरिया दैट आर इन सेटअप सेकेंड है द रेडियो एक्टिविटी बिकॉज ऑफ the DNA that comes from the bacteriophage inside the bacteria is radioactive। बेटा क्या था, सेटअप फर्स्ट के अंदर जो बैक्टीरिया थे वो रेडियो एक्टिव हो चुके थे बिकॉज उनके अंदर जो DNA आया था वो रेडियो एक्टिव DNA था, फॉस्फेट 32 से वो रेडियो एक्टिव किया गया था। So this experiment clearly proved that DNA is able to transmit it from one cell to the another cell, or we can say that DNA is the hereditary molecule because it is able to transmit from one cell to the another cell। बेटा क्या है, DNA ही जेनेटिक मटेरियल है क्योंकि वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होने के लिए कैपेबल है। सो दिस experiment completely, or we can say that properly proved that DNA is the genetic material of all the living organism। And after that the work on the structure of the DNA is begin। मीन्स जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा होगा या DNA का स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके ऊपर वर्क स्टार्ट हुआ। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। बेटा क्या किया हर्षेन ने पहले बैक्टीरियोफेज लिए, एक सेटअप में बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन कोट को रेडियो एक्टिव किया, दूसरे में DNA को रेडियो एक्टिव किया, अलग अलग दोनों से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया। एक में होता क्या है, जो रेडियो एक्टिव वी कैन से दैट प्रोटीन थी वो प्रोटीन अंदर नहीं गई, वो बाहर ही रह गया, प्रोटीन कोट बाहर ही रह गया। जब सेंट्रीफ्यूज करके दोनों में से जो बैक्टीरियोफेज कॉलोनीज थी उनको हटा दिया गया तो उसके बाद देखा गया सेटअप फर्स्ट के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी क्योंकि प्रोटीन तो अंदर गया नहीं था, वो तो बाहर ही रह गया था, उसको बाहर से ही निकाल लिया गया था। तो जो चीज़ अंदर ही नहीं गई सेल के वो जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकती। यहाँ पे DNA अंदर चला आया था। सो DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल। दिस एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली प्रूव इट। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, what is the structure of the DNA or the genetic material। So students, now our next topic is the DNA। Now we will going to discuss about DNA। So we can say that DNA is the genetic material of most of the organism, or we can say that all the organism except some acellular particles like viruses। अगर हम बेटा वायरसेस को छोड़ दें देन DNA इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट थिंग इज दैट इट इज अ मॉलिक्यूल दैट इज अ पॉलीमर। बेटा क्या है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बेटा क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। ओके, it is simply the genetic material of all the living organism and a polymer, and this polymer of nucleotide means when number of nucleotides or monomers of nucleotides are joined then they form a chain, and this chain is called as polynucleotide chain, and this polynucleotide chain is DNA or RNA that we discuss here। Next thing is that in most of the books you see that DNA is written as it is the brain of the cell। Okay, it is written as DNA is the brain of the cell। Why DNA is the brain of the cell? As our brain controls all the body parts, in the same way all the machinery or all the functions of the cell is controlled by the DNA, and this DNA is located in the nucleus। बेटा क्या होता है, ये DNA जो क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, दैट इज लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, लाइक फोटोसिंथेसिस, लाइक ट्रांसपोर्ट, लाइक शॉर्टनिंग, ऑल द प्रोसेसेस, सारी की सारी प्रोसेस बेटा कौन कंट्रोल कर रहा है, DNA कंट्रोल कर रहा है। बिकॉज दिस DNA व्हेन ट्रांसक्राइब, जब बेटा इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तब ये RNA बनाएगा,
और एक पर्टिकुलर टाइप का आरएनए, दिस इज नोन एज मैसेंजर आरएनए, एंड ए पर्टिकुलर आरएनए कैन एबल टू प्रोड्यूस एन पर्टिकुलर प्रोटीन, और बेटा जो प्रोटीन के लिए आरएनए बना होगा वही प्रोटीन बनाएगा, एंड दिस प्रोटीन इज गोइंग टू शो सम इफेक्ट, और ये प्रोटीन बेटा क्या होती है, कोई ना कोई इफेक्ट दिखाती है। डायरेक्ट डीएनए बेटा कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाता, डीएनए एक्सप्रेस ऑल देयर इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, डीएनए को बेटा जो भी अपना इफेक्ट दिखाना होता है वो प्रोटीन की हेल्प से दिखाता है। दैट्स वाई दिस डीएनए इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, दैट इज द मेन टॉपिक, DNA is the polynucleotide chain that is present inside the nucleus of the cell, and these polynucleotides are of two type. Inside our cell the polynucleotides are of two type. हमारे सेल के अंदर बेटा जो polynucleotide chain है ये दो टाइप की हैं। one is deoxyribose nucleotide, बेटा एक को क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड, और दूसरे को बोलते हैं राइबोज न्यूक्लियोटाइड। सेकेंड थिंग इज, और सेकेंड न्यूक्लियोटाइड इज राइबोज न्यूक्लियोटाइड। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू न्यूक्लियोटाइड? So we know that nucleotides are made up of three type of the component. बेटा एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन टाइप के कंपोनेंट होते हैं। First is pentose sugar, that is also known as ribose sugar. Second is nitrogenous bases, and third is phosphate group. Okay, so deoxyribose nucleotide and ribose nucleotide, both the nucleotides contains pentose sugar, nitrogenous bases and phosphate group. Okay, one second, phosphate group. So what is the basic difference? The difference lies the sugars that are present in both the nucleotide. बेटा जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में आता है वो आता है शुगर को लेकर के, और जो दूसरा डिफरेंस आता है वो नाइट्रोजन बेसेस को लेकर के आता है। ओके, तो पहला डिफरेंस बताते हैं। द मेन डिफरेंस दैट इज लाइज हियर इन द पेंटोज शुगर, जो बेटा इनकी शुगर में डिफरेंस होता है वो क्या होता है? ओके, सो दिस इज अ पेंटोज शुगर। ओके, दिस इज अ पेंटोज शुगर। If here it contains first carbon atom, here second carbon atom, here third carbon atom, fourth carbon atom, and this is the fifth carbon atom. Okay, you people considered it please. Next thing is ribose sugar. अगर बेटा यहाँ पे बात करते हैं, so the same way first carbon atom, second carbon atom, third carbon atom, fourth carbon atom, and this is the fifth carbon atom. So the basic difference, you everyone we can say that आप सबको समझ में आ रहा होगा। The basic difference is the presence of OH molecule at second carbon atom. Here deoxy means deficiency of one oxygen molecule at second carbon atom. बेटा क्या है यहाँ पे second carbon atom के ऊपर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एब्सेंट है। क्या है बेटा? deoxy। क्या बोलते हैं इसको? deoxy means deficiency of oxygen at carbon number 2. अगर कार्बन नंबर 2 पे बेटा एक ऑक्सीजन एब्सेंट है, देन इट इज नोन एज deoxyribonucleotide. If they contains the oxygen molecule at second prime end or second carbon, then they are known as ribose nucleotide. तो बेटा इनको हम क्या बोलते हैं? Ribose nucleotide. And how the nucleotides are formed we will discuss later. बेटा अभी हम बात करेंगे how these nucleotides are formed. So this is a pentose sugar. नेक्स्ट थिंग इज नाइट्रोजनस बेसेस. अगर हम अगली बात करें तो नेक्स्ट थिंग इज दैट आर नाइट्रोजनस बेसेस. सो इन द केस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स द नाइट्रोजनस बेसेस आर ऑफ टू टाइप. बेटा क्या होता है? जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं. ओके, हियर
I am going to discuss about nitrogenous bases here. Nitrogenous bases. So nitrogenous bases are also of two type. Either they are purines, बेटा या तो ये क्या होंगे, प्यूरिन्स होंगे, या तो ये क्या होंगे, pyrimidines. Either they are pyrimidines. So purines are of two type. बेटा प्यूरिन भी दो टाइप के हैं. One purine is known as एडेनिन. एक प्यूरिन को बेटा हम क्या नाम देते हैं, एडेनिन. एंड अनदर इज नोन एज गुआनिन. हियर pyrimidines आर ऑफ थ्री टाइप. बेटा ये कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं. वन इज साइटोसिन, वन इज यूरैसिल एंड वन इज थायमीन. Cytosine, uracil and thymine. So here 5 different type of nitrogenous bases are present in the case of the nucleotides, or we can say that these 5 are classified into two parts. One is purines and another are pyrimidines. Purines are of two type, one is adenine and another is guanine, and pyrimidines are of three type, cytosine, uracil and thymine. Okay, so what is the basic difference between the deoxynucleotide and ribose nucleotide? बेटा क्या difference है nitrogen bases के अंदर? So in the case of deoxyribose nucleotide, 4 nitrogenous bases are present that are adenine. बेटा वो कौन कौन से होंगे, एक तो एडेनिन होगा, एक ग्वानिन होगा, एक साइटोसिन होगा और एक थायमीन होगा. बस इन द केस ऑफ द राइबोस न्यूक्लियोटाइड बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा. क्या होगा, यहाँ पे एडेनिन होगा, एडेनिन आर देयर. सेकेंड ग्वानिन आर आल्सो देयर. साइटोसिन आल्सो देयर. बट एट द प्लेस ऑफ थायमीन बेटा क्या होगा, थायमीन की जगह पे यहाँ पे यूरैसिल होगा. थायमीन की जगह बेटा क्या होगा, राइबोस न्यूक्लियोटाइड के अंदर यूरैसिल प्रेजेंट होगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड एंड व्हाट आर द न्यूक्लियोसाइड. बेटा न्यूक्लियोटाइड क्या है और न्यूक्लियोसाइड क्या है. द क्वेश्चन इज आस्क्ड नंबर ऑफ टाइम, व्हाट इज द न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड. ओके, so a nucleoside what, when a pentose sugar attach with, when a pentose sugar is attached with a nitrogenous basis. क्या होता है, जब किसी भी पेंटोज शुगर के साथ में कोई एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है एंड द लिंकेज इज कॉल्ड एज एन ग्लाइकोसिडिक. बेटा कौन सा होता है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू अगर कोई पेंटोज शुगर किसी नाइट्रोजनस बेस के साथ में अटैच होता है, देन द कंपाउंड इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड. तब बेटा क्या बोलते हैं इसको, देन दिस कंपाउंड इज नोन एज, जो इससे कंपाउंड बनेगा इट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड. तब बेटा इसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोसाइड नाम देते हैं. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन how nucleosides are formed. Okay, please see here how a nucleoside is formed. बेटा कैसे एक न्यूक्लियोसाइड बनेगा हम देखते हैं. Okay, please see here. If I am going to discuss about cytosine, okay, if I will draw here the molecular structure of cytosine, then the cytosine is a NH2 group and a carbon, another carbon with double bond carbon, then a nitrogen, then a carbon, then a nitrogen, and this is a bond. So here a double bond O, hydrogen molecule. This is a structural formula, we can say that, or molecular formula of cytosine. And how this cytosine form an glycosidic linkage with pentose sugar. Okay, how this form? So next thing is that if it want to form an glycosidic linkage, then how it's form? बेटा ये कैसे बनाएगा? Simply it's come here and this is the NH2
C, another carbon molecule, another carbon molecule. Okay, 1 second, I will draw here it NH2, then C carbon, nitrogen, carbon, nitrogen. This is a molecular formula of cytosine, and when cytosine is come here, now what happens? From here H2O molecule is released. क्या होगा बेटा, जैसे यहाँ पे साइटोसिन आएगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, एंड एज दिस वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड, जैसे बेटा एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, देन व्हाट हैपेंस, अ लिंकेज फ्रॉम द कार्बन टू द नाइट्रोजन, इस कार्बन से नाइट्रोजन के बीच में एक लिंकेज बन जाएगी, एंड दिस लिंकेज इज नोन एज एन ग्लाइकोसिडिक linkage, N-glycosidic bond or N-glycosidic linkage, and with the help of N-glycosidic linkage all the nitrogenous base, either it is adenine, guanine, cytosine, uracil, are attached to the pentose sugar. बेटा जितने भी nitrogenous base होते हैं, why they are called as nitrogenous base? Because those compound that contains nitrogen but have the property of bases. बेटा वो ग्रुप जो नाइट्रोजन कंटेन्स करते हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टी बेस जैसी होती है, आर नोन एज नाइट्रोजनस बेसेस. तो बेटा क्या होता है, एक पेंटोज शुगर से एक नाइट्रोजनस बेस एक बॉन्ड के थ्रू अटैच करता है, एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज, एंड दिस लिंकेज इज नोन एज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. और बेटा ये लिंकेज हमेशा बनेगी कहाँ, ऑलवेज फ्रॉम द फर्स्ट कार्बन एटम. बेटा कहाँ पे बनेगी, फर्स्ट कार्बन एटम, पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर ये लिंकेज बनती है. नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ फॉस्फेट ग्रुप इट अटैच. सो दिस आई कैन से दैट दिस होल मॉलिक्यूल इज नोन एज, इस बेटा मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड. इस मॉलिक्यूल को हम नाम देंगे न्यूक्लियोसाइड. It is nucleoside so far, not nucleotide, and this nucleoside that is attached with cytosine. बेटा किसके साथ में अटैच है, साइटोसिन. देन व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, व्हेन दिस न्यूक्लियोसाइड इज एडेड विथ फॉस्फेट. क्या हो बेटा, अगर इसके साथ में अब फॉस्फेट ऐड कर दिया जाए, क्या हो जाए, अगर यहाँ पे हम फॉस्फेट ऐड कर लें. फॉस्फेट बेटा किसके फॉर्म में होता है, PO4 माइनस. फॉस्फेट इज अ फंक्शनल ग्रुप दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ PO4, जिसमें 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से और 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है. नाउ व्हाट हैपेंस हियर, बेटा अब यहाँ पे क्या होगा, अ फॉस्फेट मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ, बेटा इस फॉर्म में एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल आएगा, एंड दिस फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच्ड हियर. और बेटा ये कहाँ पे बेटा बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा आके 5th कार्बन के साथ में. नाउ व्हाट हैपेंस, द सिनेरियो विल बी चेंज. बेटा यहाँ पे थोड़ा इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा. दिस कार्बन अगेन CH2 एंड हियर OH इज प्रेजेंट. बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली फॉस्फेट ग्रुप. दिस इज P, दिस इज O, this is another O, we can say single bond, double bond. Okay, this is a phosphate molecule. As this phosphate molecule comes here, then what happens as physiological pH. बेटा क्या होता है, physiological pH के ऊपर यहाँ से OH molecule निकल जाता है, and simply what happens, this O forms a bond with the, बेटा क्या करता है, ये O एक बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ में, एंड दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोइस्टर बॉन्ड. और इस बड़ा बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, दिस बॉन्ड इज नोन एज, इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं, दिस बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फोइस्टर बॉन्ड.
This bond is known as phosphoester bond, and when this phosphoester bond is formed, then this is the complete molecule of a nucleotide. बेटा ये एक न्यूक्लियोटाइड बन चुका है. If here OH is present, then it is known as ribose nucleotide, and if here only H is present, then it is known as deoxyribose nucleotide. बेटा अगर यहाँ पे सिर्फ H प्रेजेंट है तो deoxyribose nucleotide, अगर यहाँ पे OH है तो ribose nucleotide. Now this structure is known as the nucleotide. This whole structure is known as nucleotide. बेटा इसी स्ट्रक्चर को हम ना क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड. बेटा ये एक मोनोमर है. दिस इज अ मोनोमर ऑफ डीएनए. बेटा क्या है? एक डीएनए का मोनोमर है. ओके, इन द मोनोमर ऑफ डीएनए 2 बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. बेटा एक हमने देखा यहाँ पे फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है, दूसरा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है. सो दिस इज द मॉलिक्यूल, दिस इज अ मोनोमर, एंड दिस मोनोमर ऑफ nucleotide is monomer of DNA or RNA is known as the nucleotide. Now what happens? So here if we put another nucleotide, बेटा अगर यहाँ पे हम एक और न्यूक्लियोटाइड ला के रख देते हैं तो फिर वो कैसा होगा? देखते हैं स्ट्रक्चर. दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड. वी सिंपली टेक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. यहाँ पे बेटा जैसे यहाँ पे साइटोसिन था तो यहाँ पे हम एडेनिन ले लेते हैं. एडेनिन के लिए सिर्फ ए लिखेंगे. 5 कार्बन नंबर से CH2 के साथ में एक O है पहले से अटैच, एक P है पहले से अटैच, एक O है पहले से अटैच, डबल बॉन्ड के साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ. ये बेटा एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है. हाउ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज फॉर्म? बेटा क्या होता है? एट फिजियोलॉजिकल पीएच, एट पीएच 7.4. बेटा क्या होता है? सारे का सारा कंडीशन से सारे का सारा सिनेरियो हमारे बॉडी के अंदर चल रहा है. तो फिजियोलॉजिकल पीएच 7.4 के ऊपर है. सारे के सारे जो OH होंगे वो हाइड्रोलाइज हो जाएंगे और H के फॉर्म में आ जाएंगे. नाउ व्हाट हैपेंस हियर? हियर अ बॉन्ड इज फॉर्म from third carbon of one nucleotide to the phosphate, or we can say that 5th carbon of another nucleotide, and bond is formed, and this bond is known as phosphodiester bond. ऐसे ही लिख देते हैं और इस पूरे के पूरे बॉन्ड को हम नाम देते हैं phosphodiester bond. This is known as phosphodiester bond. So in polynucleotide chain 3 type of bond is present. बेटा क्या होता है? जब पहले when nucleotides are formed, then they form N-glycosidic, another that is phosphoester bond, and after that when different nucleotides are joined to each other and form a backbone of the polynucleotide chain, then another bond is formed that is known as phosphodiester bond, and phosphodiester bond always form between the 2 nucleotides. बेटा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमेशा 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनेंगे. सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए. बेटा ये डीएनए का एक स्ट्रक्चर है. नाउ व्हाट हैपेंस? अ चैन स्टार्ट टू बी प्रिपेयर. एक चैन बननी स्टार्ट हो जाएगी. बेटा अगर इसको हम सिंपल वे में बनाएं तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर बनेगा. लेट्स सी हियर. एक मिनट. इफ वी स्टार्ट टू प्रिपेयर अ चैन, then this is a pentose sugar. A pentose sugar is a pentose sugar. A 5th carbon, a phosphate molecule, here a nitrogenous base adenine is present. If second nucleotide is added, बेटा क्या होगा? अगर यहाँ पे हमको second nucleotide ऐड करना है, then what happens? तो बेटा फिर से क्या होगा? वही कंडीशंस होंगी सारी के सारी. H, OH, वहाँ पे एडेनिन था, देन सेकेंड मॉलिक्यूल कोई भी ले सकते हैं, साइटोसिन आ जाएगा यहाँ पे. फिर से बेटा क्या होगा? यहाँ पे CH2 और CH2 के साथ में एक O, एक P और P के साथ में फिर एक O, और ये दोनों O आपस में एक बॉन्ड बना देंगे और यहाँ से H क्या होगा? रिमूव हो जाएगा. एंड दिस इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. और बेटा कौन सा बॉन्ड बनेगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा. अगला अगर फिर से यहाँ पे जोड़ना है तो फिर से हम देखते हैं कि ये हाइड्रोलाइज होगा, O आ जाएगा, फिर से P आ जाएगा और फिर से यहाँ पे O और एक CH2.
और बेटा ये CH2 के साथ में एक फिर से एक न्यूक्लियोटाइड. नाउ व्हाट हैपेंस, अ चेन इज स्टार्ट टू बी फॉर्म. इससे बेटा क्या होगा, एक चेन बनती हुई चली जाएगी. एंड हियर वी कैन टेक अ थायमिन. बेटा क्या होगा, इससे एक चेन बनती हुई चली जाएगी. एंड दिस चेन इज नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड. इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड every molecule is attached with a phosphodiester bond. सारे के सारे बेटा मॉलिक्यूल किससे अटैच होंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से अटैच होंगे. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से सारे के सारे मॉलिक्यूल अटैच होंगे. सो दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द DNA बैकबोन, और वी कैन से दैट अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. ओके, सो who first time given the explanatory, or we can say that a foolproof DNA helical structure. बेटा सबसे पहले किसने DNA का स्ट्रक्चर दिया था, हाउ DNA इज प्रेजेंट इनसाइड अ न्यूक्लियस. एक न्यूक्लियस के अंदर DNA कैसे प्रेजेंट होता है. तो फर्स्ट टाइम this model was given by Watson and Crick, and this model was known as double helical model of DNA. बेटा इस मॉडल को क्या नाम दिया गया, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ DNA, that we discuss in our next class. So I think it's all about today's class. Today we have discussed about the experimental proof that DNA is the genetic material. After that we discussed about the structure of the DNA, that DNA is made up of three main molecule. One is pentose sugar, another is nitrogenous base, and third one is phosphate. And this, for how this phosphate, pentose sugar and nitrogenous base are attached to each other, what are different type of bonds or linkages. In our next class we will discuss about the structure of the DNA and the model of the DNA that is given by Watson and Crick, that is known as double helical structure or double helix model of the DNA. Okay, so thank you dear students for watching my video.